अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। प्राणेश्वर তুমি নেই, প্রকৃতিও নেই, কোনো জীবজন্তু। কিছুদিন আগে আমফান রূপে এসে তোমার সংহার তাণ্ডব দেখতে পেলাম। সেই সংহার তাণ্ডবের ফল এখনো গভর্নমেন্ট বা আমিও আমার কালামণ্ডলমের যে প্যাচিংটা পড়ে গেছে, রোডস পার্কস সব রোডস ব্লক হয়ে গেছে, যেটা বাই গভর্নমেন্ট আস্তে আস্তে করে ঠিক করে আসছে। যাই হোক, আমার ছাত্রী জলসা চন্দ্রা ও নাকি এক উইক এই 27 শুরু করে এক উইক প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে। কি কত ছোট 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 গাছটা লাগিয়ে সেই বড় বড় বৃক্ষ হয়ে যাবে। কেন আমাদের সাইক্লোনে অনেক বৃক্ষ, অনেক নেচার ক্ষতি হয়ে গেছে, কিন্তু আমার এখানে দেখলে বুঝবে না, এখানে যত তাড়াতাড়ি করে বড় হয়ে যায়। পার্কস তো পাশেই পার্কস, এত সুন্দর জায়গায় থাকি, সবই ভগবানের কৃপা। আর এই বয়সকালে পেরেছি এটা ছোট ছোট, কিন্তু এই যে আমাদের সাইক্লোন হলো সব দেখে দেখে আমার ছাত্রী জলসা চন্দ্রা এবং ওর স্বামী দেব বটে, দেবের মতে সঙ্গে মানুষের জন্যে অন্নদান বা নানান রকম প্রোগ্রাম, এই যে বৃক্ষারোপণ বলে যে 27 শুরু হচ্ছে, এরকম নানান রকম প্রোগ্রাম করছে। সেটা আমি পর্যন্ত করতে পারিনি এতদিন, কিন্তু আমার থেকে আমার ছাত্রীরা সবসময় বড় হয়ে যাবে আমি ওদের কাছেও বলি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করি। যাই হোক, এই কি 27 থেকে ও প্রোগ্রাম শুরু হবে, সেটা দেখা যায় কিরকম হবে, হবারই কথা। কেননা ও আমার সঙ্গে মোর দেন 25 ইয়ার্স কানেক্টেড। প্রথমে ও পড়েছে, শিখেছে নিয়ে 12 বছরের মতো, তারপরে আমাকে হেল্প করেছে, শিখাতেও হেল্প করেছে, এবং কালামণ্ডলম ক্যালকাটার প্রোগ্রাম উইংয়ে ও ঢুকেছে। ও প্রোগ্রাম উইংয়ে দেশে, যেমন কেরালা থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত, তেমনি করে বিদেশেও প্রোগ্রাম করেছে। সেইটা সব ফলে আর তার সঙ্গে আবার নিজে স্কুলও শুরু করেছে। আমাকে বলেছে এটা আন্টি আমার স্কুল আছে, এটা ছোট্ট করে শুরু করো, খুব ভালো করো, কেন পুরানো আইটেমটা কখনো তোমার প্র্যাকটিস হয় না, সেটা এই দ্বারা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। একদম শুরু করে আমারই তো দেখো, কেউ তো পুরো চিরদিন থাকবে না, তো আমারও বয়স হয়ে যাচ্ছে, তারপরে তুমিই তো বড় হবে। মানে আমার যে সিনিয়র স্টুডেন্টস আজকে আমি বলছি, কালকে ওরাই বড় বড় টিচার্স, ওরও বড় বড় আর্টিস্ট, অনেক আর্টিস্ট আছে, কিন্তু আমি স্পেশালি আমার স্টুডেন্টসের কথা বলছি। কেন, কেউ যদি সবাই যদি নিজস্ব ঠিক করতে পারে,
নিজের স্টুডেন্টসকে ঠিক করতে পারে, নিজের স্টুডেন্টসকে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে। আর সবাইকে স্টুডেন্টস বলা যায় না, কিন্তু যারা অনেক দিন থেকে শিখছে সেটার জন্য বলছি ওর সেই ভালোভাবে করছে। তারপরে ও বিয়ে করেছে যে দেবের মতন একজন, দেবতাদের মধ্যে একজন দেব আর কি। আমি ভাবছি ওর সঙ্গে, দেবের সঙ্গে অর্ধাঙ্গিনী হয়ে সব রকম কাজও করছে। এবং তা নয়, তার স্টুডেন্ট আর ওর নিজস্ব কত কি প্রয়ত্ন করছি বড় হবার জন্যে। আমি ঠিক বলবো না সেটা বড় হয়েছে, ওটা বড় হওয়ার কোনো সীমা নেই। তো ঠাকুরের কাছে আমরা কে পৌঁছবে কে পৌঁছে না যে বলে যায় না, তখন নিজের একটা সন্তৃপ্তি, সেটা স্যাটিসফ্যাকশন, সেটা প্রকৃতির জন্য। প্রকৃতি তো সব কিছু, প্রকৃতি না থাকলে আমাকে নাচ নেই, মানে প্রকৃতি নাচছে আমরা নাচছি, প্রকৃতি নাচছে না আমরাও নাচছি না। প্রকৃতি নানান রকম এক্সপ্রেশনটা আর দেখালে আছে সব। তুমি ভালো হোক, আমার ইচ্ছে তোমার 27-তে যে প্রোগ্রাম স্টার্টিং করছে, বড় বড় আর্টিস্ট ওই মধ্যে ঢুকছে। আর বড় বড় আর্টিস্ট কেন, কামিং আপ ডান্সার্সকে সবাইকে ঢুকাও। আমরা এই আমার প্রত্যেকটা ছাত্রীরা এই যদি ভালো কাজ, তোমার মতো কাজটা ভালো করে করে খুব ভালো হবে, নো ডাউট। আর তুমি অর্ধাঙ্গিনী হয়ে সবসময় দেবের পাশে থাকবে, এটাই আমার আশীর্বাদ। জেলসা, তুমি একটা কাজ করেছ, বা সব স্টুডেন্টসের জন্য আমার এই একটাই কথা, learn from the teacher. That means Gita. Atita means practice it daily, but every day, whenever it is possible. আচরণা ভালো করে জেনে ঠেনে প্র্যাকটিস করো। আচরণা মানে প্র্যাকটিস করো, জেনে প্র্যাকটিস করো, না জেনে না। জানতে চেষ্টা করবে, তারপরে প্র্যাকটিস করবে, দেন প্রচারণা। এই প্রচারণা মানে যা পারফরম্যান্স, এই ও মানে ঠিক শেখানো, ইত্যাদি সব স্টুডেন্টস যদি এইটা করে পিসফুলি, তাহলে কেউ একটা ভালো টিচার হতেই পারে না। 35-40 ইয়ার্স হলে একটা ভালো টিচার হবে, তার আগে কোনো ভালো টিচার হবে না, দেয়ার ইজ নো ডাউট। আমার এটা অনুভব, আমার এক্সপিরিয়েন্স। অনেক কিছু জেনে তারপরে টিচার হওয়া যায়, উনি একটা টর্চ বেয়ারার করতেই পারেন না। এটা ফার্স্টে জানতে হবে ঋষি মানে কি, টিচার মানে কি আছে, এরকম গুরু মানে কি আছে, এরকম নানান রকম আছে এটার মধ্যে। সব কোনটা কিছু না জেনে ভরতনাট্যম পুরো ভাবরাগ তালম, কার ভাবরাগ তালম আমরা করছি, এটা না জেনে কোনো বাচ্চাকে শেখাতে পারে। তুমি নিশ্চয় জানো, আমি মনে করছি আমি যে শিখিয়ে দিয়েছি এটা মনে রেখেই সব কাজ করতে হবে, না হলে তাহলে ওইটাই আমার আশা, আমার স্টুডেন্ট সবাই সব জেনে কাজ করবে। মধ্যতো বিষ্ণুরূপিণে অগ্রতঃ শিবরূপায় বৃক্ষরাজায় তে নমঃ। ঊর্ধ্বমূলम् অধঃ শাখम् অশ্বত্থং প্রাহুরव्ययम् ছন্দাংসি यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अश्वत्थ
पुरुषोत्तमोऽर्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः. Namaskar. On behalf of IC Care and Jalsha Chandra Performing Troupe, I welcome you to Pranitya, a week-long festival of nature and art. We have commenced our festival yesterday on the 27th of July by planting a few trees around Kolkata. We will be planting more trees in the recent future again. Art and nature has a very, very fine and intricate bonding. To know more about both, to know more about the relation between both, we are very, very glad to have with us today the finest and one of the greatest exponents of Bharatanatyam, Srimati Rama Vaidyanathan ji. Thank you so much, Akka, for agreeing to come here, for agreeing to share your thoughts with us. Thank you so much. Srimati Rama Vaidyanathan is a world-famous Bharatanatyam exponent. She has been under the sheer guidance of legendary dancer Guru Srimati Yamini Krishnamurti and Guru Saroja Vaidyanathan. Rama Vaidyanathan has been performing professionally in different parts of the globe. She brings to her dance a rare sense of devotion and dedication, which leaves the audience with a sense of spiritual fulfillment. She has been featured in all major dance venues in India and abroad. She is an A-top artist with Doordarshan and is in the outstanding category with the ICCR. She has been invited to perform for various prestigious organizations like the Sangeet Natak Academy, Sahitya Kala Parishad, the IGNCA in Delhi, NCPA, Mumbai, Shantiniketan, Kolkata, Kalakshetra, Karthik Fine Arts, Brahma Gana Sabha in Chennai, to name a few. She has many, many performances in abroad, and she has received the Sangeet Natak Academy Award as well. Thank you so much, Akka, for coming. Agreeing. Thank you. Yes. So without much ado, I'll start with this conversation, and I'll start with the first question that I had. Art links with nature. Art moves towards nature, and nature moves towards spiritualism, the quest for that greater truth. This is a chain. It becomes a continuous, uninterrupted process, a continuous, uninterrupted wave of thought. Kindly, can you throw light on this topic of the link between nature, art, and spiritualism? First of all, thank you, Jalsa, for inviting me. I'm very happy to talk about the connection of nature, life, and art, because it is a topic which is very close to my heart. And my endeavor as a dancer is always to represent nature. So they say that art imitates life. Art imitates nature. I feel for an artist, whether you are a dancer or a singer or a painter or a sculptor, you can find all your answers and all your inspirations from nature. I think nature has the answer for all our questions. And nature is what inspires artists to go on. And even something small like, showing a flower, showing a bee, or showing the rain, showing the stars in the sky. Why are we doing it?
We are doing it because we've seen it. We have experienced it. I've experienced the rain on my face when it comes. So then when I'm showing it in dance, I can express it because I have felt it. When I show a bird chirping and moving, or a peacock moving its neck, why am I doing it? How am I doing it? Because I have seen that peacock, I have seen that bird. So I imitate not just what I saw today and yesterday. I imitate life's journey. I may have seen the peacock when I was, but that memory lingers in my mind. And then years later, when I'm showing the peacock, I don't have to go to any forest or any zoo to see it come to me. So this connection between nature and art is a connection which nobody began, nobody can stop. As long as art is there, nature is there. As long as nature is there, art is there. Both are intertwined with each other. Mm-hmm. Now, the thing is, when I represent nature or when I imitate nature, I become a part of a larger picture. So when I'm showing, suppose I'm showing the earth, the sun, and the earth moving around the sun. When I show that, I become a part of that larger cosmos. So I step out of the confines of that stage. Physically, yes, I'm there. I'm standing there, right on that stage. But on a very parallel reality level, I have moved out of that stage and I have actually become a part of that whole cosmos where the sun is shining, the earth is moving around the sun, and I become a part of a larger picture, unknowingly or knowingly. And I think as artists, we have to try to become a part of the larger picture. For example, suppose I step into a forest, a dense forest with animals and trees and birds. The minute I enter that forest, I become a part of that forest. So when the entity of a forest is seen, it is seen with me in the forest. So I have become a part of that forest, and that forest has embraced me and made me a part of that space. So similarly, when I show or imitate nature, nature has embraced me, and I have become a part of that larger consciousness, which encompasses not just me and the stage, but also the peacock that I'm showing, the sky that I'm showing, the rain that I'm showing. It encompasses every single aspect of this universe. And I become one with all of that. So I always say, so when I dance, I always say, when we dance, we actually transform ourselves from singular to plural. We are just one body, but then we touch so many things. We reach out to so many people gather within us, and we become a part of that larger consciousness of life. And I think that is the biggest philosophical story that we all must keep in our minds always, that we are a part of that larger macroscopic manifestation. We are just that one microscopic manifestation. We may be just that one tiny person standing on that stage and dancing, but we are actually representing the universe, the world. So I think that is the connection between art, nature, and spirituality. Yeah, thank you. Yes. So I think, as you say, it is really a very big responsibility as an artist when we are on stage, because as you are saying, to keep that in mind, because we are representing the whole, we are representing the entire thing. So it is not just us, it is not just me, it is
I representing everything. So that is a very big responsibility, I think, and you have to understand this. You have to I think that with age and maturity and experience, I think as dancers we should more gradually grasp that and understand that what we are doing is actually raising us to a different level. And that is why that energy level and that entire thing goes, like we raise ourselves, and that's how we reach out, and that's how maybe, and as you say, like everything, art, nature and spiritualism is connected in that way. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you, Akka. The next question that came in mind was, we know that the greater aspect of art, nature or life will carry on. It will carry on through the ages and time. But this pandemic has left a question on the immediate posterity. According to you, how should we and the future generation imbibe the art form and carry on? What should be our motivation for the future generation? What should be our motivation and the motivation for the future generation artists to carry on in this situation? And how should we grasp maybe nature, and what should motivate us? I think we should constantly look for inspirations in nature, whether it is the mountains or the rain or emotions. When I say nature, I not only mean things that we can perceive with our eyes and ears, but also things that we can perceive with our heart, with our soul. You know, the feeling of a sense of peace when you look at a yogi, the feeling of sense of an innocence when you look at a little small child, the feeling, the emotion that you go through when you look at your mother, or when your mother has gone away from your life, or your father has gone away from your life, the emotion that you feel, all this is part of life and nature. So nature not just includes the rivers and the wind and the mountains, but also emotions that we go through all our lives. So especially during this pandemic, I think we as artists need to dive into the reservoir of emotions and perceptions and visions that we have gathered all through our lives, whether we are 10 years old or 50 years old, whatever is our life, whatever we have gathered, this is the time to dive into those emotions, to dive into those images and perceptions, and see how you can translate them into art, and see how you can express them through your chosen medium of artistic communication, whether you're a painter or a sculptor, musician, singer, dancer. So this is the time, I feel, when life has slowed down. We as artists, it is, yes, I know it is difficult to stay inspired, because there has been loss of life, loss of opportunities, loss of wealth. So much of loss has happened around us. And yes, it is difficult to stay inspired. But I think nature is something which will never let you down. It is, I feel, a very, very deep well, like a reservoir of images. Respect the strengths that you yourself have. Your own strengths is what's going to help you in the future. So I think this is a time to stop, look, rewind, renew, and try to reinforce your strengths that may have been lying within you, but you never knew. You never knew that they were all there. So this is the only way artists can stay inspired
during these stuff. And I feel when you not just diving down into your reservoir of images, but also to be aware and alert of what is happening around you, because that's very important. Because when we say art imitates life, art imitates nature, when we say that, it's because of the response that we have towards art, towards life. It is the response that we as human beings respond. Nature has got its back. So when I see nature, I can hear and see words I've not seen before. I can feel the breath is cleaner. I can feel the air is so much more cleaner. So then what do? I respond to it. I respond to it through my art. So when you do that, that's a very inspirational experience that you can have when you respond to current situations and respond to them through your art, translate them through your art. I think that is what we must do in this pandemic. Okay. So yes, that is, I guess, that is how it is the best way to be motivated. It is difficult, but I guess because we have to live and we have to carry on. This cannot be the end of it, right? We cannot. We have to think, and that is why we also thought of doing this, like because somehow, somewhere we have to move on, and I think at this juncture, it is important to cling on to what is important, cling on to nature, and because that is I think the best inspiration. Nature is our best inspiration. So it is in this pandemic, that inspiration from our life, as you're saying, inspiration from all the memories of our life, from all the relationships of our life, from all that is there in life, to be motivated, because we have to be motivated to carry on, because we have to carry on. We cannot stop. Yes. 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 The next question, that is, I'm really, I mean, very, I want to hear and I want to know about this. The subject of nature is a very commonly explored topic for artists. Can you explain your change of approach to the subject in topic, in choreography, in the various stages of your life? How the subject of nature changes? Yeah. See, I think the most important thing is to experience it before you translate it into dance. Like, for example, it could be something small as showing the rain, but it is nice when you yourself go out into the rain and feel the real rain droplets on your face, and the way you react to the rain on your face, the way you react to when the sun shines on your eyes, or the way you will react to maybe seeing a snake. Or you will react to, for example, when you suddenly wake up in the morning and you see a huge mountain peak visible, which wasn't visible the previous day. And then suddenly the clouds have cleared and suddenly you see that mountain. So I think experiences in life, like I said before, help you. And I have always used that. I have used my own real life experiences. Like, for example, even when I had to show the image of Madurai Meenakshi, the goddess Meenakshi. So she stands with a peacock, with a parrot in her hand like this. And she stands, yes, parrot, and then she stands with a deflection of her hip. But to get that real stance correct, I had to go to the temple where a beautiful image of Madurai Meenakshi is made, and I had to just stand there and keep looking at that sculpture, imbibing, understanding the way she has been
sculpted to stand there for me to imbibe it. So it is important, like I said, to be alert and look at the world outside your classroom. Dance is not about just those four walls of your classroom. It is beyond that. You have to. So that is what I do. And the other thing I do is I read a lot. I do a lot of research on whatever topic I'm presenting. For example, I was choreographing a piece on Kindle, and at some point I came to a standstill because I did not understand. No images were coming into my mind. Of course, a lot of images of my childhood memories of going to Rishikesh and Haridwar came into the choreography. But it's only after I read books. Through the books, I got images. Through the books, I got visual imagery of what I can reproduce through my dance. So reading and research is extremely important. So at every stage of my life, I have always knocked on the door of nature. I have tapped my experiences with nature. And I have done this research. And like I said, I have stepped out of the classroom. It's very important to do that. Classroom is only where you perfect your technique. That's all. But it is the world outside that will make you an artist from just being a dancer. So this has been my approach. Okay. Oh, yes. And just, Akka, what I wanted to know, like, do you think, like, as an artist matures, like, with time, so that perspective of looking at nature, does that vary with age? Like, as a young girl, the way she will look at nature, and then maybe in the adolescence period, and then when you are getting married, and then later, is that approach to that nature changes according to age of that artist? I'm sure it does. Yes, definitely. Because as you grow older, your mind is becoming more and more matured. But at the same time, we must remember the body is also becoming lesser and lesser agile. So the optimum period of the body being agile and the mind being matured is that window is very short. It's only for about 15 years, 20 years maximum. And then after that, the mind keeps getting more and more matured, but the body becomes lesser and lesser agile. So accordingly, the dancer will perceive and reproduce accordingly in that way. Okay. In her physical representation of dance and of nature, of maybe of rain. Maybe when I become 80 years old and when I show the rain, it will be just about me sitting and looking at the rain and wondering where this water is coming from. This rain that is dropping down, this water is millions and millions of years old. This water was initially ice, then it became water, then it became water vapor, then it went up and became clouds, and then it came down as water, then it went up again. So it has gone through so many cycles of life. So I will be looking at the rain in a very different perspective probably. And when I was younger, I was looking at the rain, how it is falling on my face, how I take the rainwater and play with my friends, how I step on the water. So like you said very correctly, perceptions change, and accordingly, the reproduction of your dance will change. Yes, so that change is in two ways. One is your body agility as your body permits, and also the experiences that you have, like your age and experience will make you deal with that subject of nature in a different way, because you are seeing yourself in 80s or you're seeing yourself at the age of 8 is a very, very wide difference. Okay, thank you. Yes, okay.
The next thing that we wanted to know is this pandemic and lockdown has affected mankind economically, as you were saying, yes, economically and also psychologically. There has been so many depressions and all that. But on the other hand, from the side of nature, there has been a reduction of air pollution. There has been an increase in water clarity. So, as we can say, like nature has tried to retain its balance. So, on that aspect, so that is a part of that greater truth that at the expense of something, something benefits. So, we know that art is the greatest healer. For me, art is a meditation process, and art heals the mind. So, through our art form, how can we derive solace and maybe realize the fact that what is happening is maybe happening for that greater balance of nature, maybe for that greater truth? And how do we derive solace from our mythology, from our scriptures, maybe from the Vedas, maybe, and understand this fact? First of all, I feel there's one thing we need to learn from nature is to be strong and resilient and fight and get back as soon as possible. For example, within 2 months of the lockdown, you could see that nature came back. There was green foliage everywhere. You could, like I said, you could see and hear the birds you'd not seen before. The stars, you could see more stars in the sky. The sky became so blue. Your air became cleaner. So Earth just got back. Nature just got back so quickly. And as artists, I feel during the lockdown, even though we have lost money and opportunities, but we have not lost our passion and our love for dance, which is why there have been so many online discussions and programs like this, what you are doing, and also online live dance programs. So many programs have been taking place during the lockdown. Why is it? Why are these dancers dancing? They are not getting paid for it, right? But still, why are they dancing? They are dancing because they want to continue the process of dance. So it is the inner strength which shows them the way. And then we know that it is not all about money. It is also about continuing your dance. Whether you're getting money for it or not getting money for it, that's not the point. We dancers have shown that for us, the show must go on. Life must go on with our dance. Just as nature said, the show must go on. So these are these lessons that we learn from nature of being resilient and of being selfless. Selflessly, artists have shared their art, in the online performances. And I have been so overwhelmed and touched to see so many artists coming forward to perform, and so many people are watching it and commenting it. I think it has been a very, very positive attitude of artists for sharing their art so selflessly and sharing their art at a time when we have shown that it is art that has healed. What if there were no online performances? Can you imagine how the lockdown would have been for everybody in the world? It is because people are watching those films, people are watching those videos, people are watching those online performances, listening to those wonderful music. It is because of that art has helped to heal man in these very, very uncertain and troubled times. So our philosophy and our mythology has always been about finding your inner strength and finding a larger cause. The larger cause for the artist was the art has to continue.
and we must go forward, and we must use this to heal and understand that art is necessary to heal and not always to earn money and fame and name. It is also to heal, not only to entertain, but also to give a soul-stirring satisfaction to mankind. And I think in this pandemic, we have proven it very, very beautifully. I'm very, very proud of the dancing community. Yes, as you say, yes. It has been a healer, right? There has been so many programs and so many sessions, and yes, and we have learned so much. And personalities like you, there has been so many demonstrations we are continuously hearing. Yes, because there has been a lack of work. Like otherwise it is that empty mind is a devil's workshop. People wouldn't know what to do. Like this is the session, these whatever it is, all that is going on is leading us somewhere. It is showing us a path, like where to continue and not to stop. Like, and we are also like somebody else is doing, so we get that example. Okay, so we also have to do something. So like everybody is gearing up, and even in spite of there is no financial aid, but everybody has a this healthy competition that is going on, I think. Yes, and it is helping us to do something. We are all motivated. No, we have to do something, innovate something more, something differently, and so that and that is helping us to move on, and that is helping us to fight this situation, I think. Yes, correct. Yes. And yes, that's true. And finally, we will. This is the last question. That according to your opinion, as an artist, what is our role in the society during this time? And how can we execute it? So, like I already said, yes, our role is twofold. One is to show that art has several reasons to exist. An artist has several reasons to showcase his art. It is not always for any specific gain. It is also for selflessly giving. And I think this is an attitude dancers should have. Since I'm a dancer, I'm saying that. So we should have that, to be able to give, to be able to share. And the second responsibility as artists living in these troubled times with this global pandemic is to, like I said, respond. To be part of fundraising events that can give livelihood to people who have lost their jobs, or to old artists who cannot perform anymore, or technicians who do not have any work. So to respond, and then whatever you have, to share that with everybody, because we should know that these technicians, we need them after the pandemic is over. Yes. We need everybody after the pandemic is over. So we cannot go right above and stay there and say, okay, I have reached here, it's okay. No, everybody has to come up. Everybody has to survive. Everybody has to be sustained. Just me surviving and me sustaining is not going to make any difference. It's only going to make me fall down after some time. So the way forward is always together. We need to go forward together. One person going up is not going to work. So this is the time to respond to these situations and to reach out, to create productions, maybe a little video to send a message across about how we must treat our health workers, or a little video to send a message across about how do we keep our mental health strong during these uncertain times. So many things we can do as artists. So many things. We can respond. We can raise funds. We can heal. We can do some new choreographic work as a response.
So as artists, I think the responsibility is to keep the flag of art alive, flowing and shining and right up, and not let it fall. Yeah, so as you say, like, we have to understand that this is like, we are part of this entire thing. It is not we, us alone. It is everybody together. Not at all. Yes, and absolutely. And so, like, if we have to survive today, we have to survive together and fight it together and help each other. And I think that is the thank you so much for this motivation, because this is a message that everybody, as an artist, like, everybody should learn from you, that yes, we have to, it is not I alone who will carry on. It is we together, because we have to finish this. We will pray to God that this pandemic ends soon and we will go on and get on to that our fields. And I will pray that to see you again on stage, and everybody, and so that, like, we again do what we cherish to do, and with what we do, and that has to be together. That has to be all of us together, and that is important. Like, as an artist, it is such an important message, that art, and because some people have that misconception that we are like, it is a very different field where we are not very responsible towards the society, but it is not so. Because it is not so. We can also yes, we can also do our bit, and I think that is, and because we have a power to motivate. We have that power to motivate, and people, and as you are doing, and it is wonderful that you told us this, and we will learn from this, and hope there are others who will learn from this. And that's where we end with our questions today. And thank you so much again, Akka, for sharing your thoughts, and thank you so much for because this was very important, because it is dance, yes, but nature and dance, because at this hour, it is this crisis to save the earth is very important. This is a juncture where we have to understand that this bigger truth of life. We have to understand that we have to move on, and I cannot survive alone. It has to be we. If I have to survive, I have to survive with everybody else. And that is only how. It is not I alone. It is the human race. It is nature. It is God. It is all together that we build that entire earth. And we have to maintain, and we have to, for God, who has created this wonderful, wonderful world, this universe for us, we have to put in our best of efforts so that we stick together and we fight this through. I thank you so much, Akka. Thank you so much for being a part of. Thank you, and I congratulate you. Art, and especially in these times, it is very, very important to re-establish the connection that man has with nature, and that a dancer has with nature. It is very, very important. So I think this initiative that you have taken is very, very important and very relevant, much needed, and I congratulate you on that. Thank you so much, Anka. Thank you for sharing your thoughts, and thank you for spending your time with us. My sincerest regards. Thank you so much. Thank you so much. मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः. Pranam, Guruji. On behalf of IC Care and Jalsha Chandra Performing Troupe, I, Jalsha Chandra and Devashish Das welcome you to the festival Pranitya, a week-long festival of nature and art. 27th जुलाई को हम लोगों ने कल कुछ पेड़ लगाए हैं कोलकाता के कुछ इलाके में, और प्रकृति और कला की एक गहरा संबंध है, और इस संबंध के बारे में अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करने के लिए आज हमारे साथ है गुरु पंडित श्री राजेंद्र कुमार गंगानी जी. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम माँ. अब आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए सादर प्रणाम. बहुत 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 धन्यवाद. Guru Pandit Rajendra Kumar Gangani ji inherited the tradition of the Jaipur Gharana of Kathak dance from his father, Guru Pandit Shri Kundan Lal Gangani ji. He has also acquired proficiency in playing the pakhwaj under the tutelage of Gurus Shri Purushottam ji and Totaram ji. An outstanding performer of Kathak, Guruji has evolved a distinct style of presentation expressing the crudity of the dance. Though best known as a soloist, he has choreographed a number of productions and also composed music for these traditional formats as well. He has performed extensively within the country in important festivals of arts. Performances abroad has taken him all over Europe, Middle East, Russia, and the United States. A committed teacher of Kathak working at Kathak Kendra, Delhi since 1983. He has made a significant contribution in grooming young dancers. He has also conducted workshops in dance in India and other countries. Guruji has been honored with Karnataka Sangeet Nritya Academy Award in 1994 and also received the Sangeet Natak Academy Award for his contribution to Kathak dance. Thank you, Guruji. Thank you. शुरू करते हैं. प्रकृति की जो ताल है, लय है, जो छंद है, और नृत्य का जो ताल है, दोनों में क्या संबंध है, और नृत्य का जो ताल है उसका जन्म किस प्रकार हुआ है, अगर कुछ बताएं. सबसे पहले तो जलसा आप दोनों को बहुत बहुत बधाई. तुम एक प्रकृति हो और देवाशीष देवों के शिष्य बन के आए और भक्त बने, तो ये पुरुष है. तो प्रकृति पुरुष जैसे कि सृष्टि को अपने आप में एक सिस्टम दिया भगवान ने. यू नो, दिस इज द सिस्टम. सो और जो नेचर है ना, वो एक सबसे बड़ा वो लय है जो सर्वे सर्वा व्याप्त है, इज एवरीवेयर. क्योंकि हर चीज जो है और जिसके अंदर प्राण बसते हैं वही लय बसती है, वही ताल है. वो कैसा भी संगीत कर लीजिए, आप कैसा भी नृत्य कर लें. हम लोग बहुत जो संगीत और नृत्य के साधक होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजनों ने हमें वो रास्ता बताया कि हम उस लय ताल को समझ सकते हैं, लेकिन है सबके अंदर. हम उस लय ताल को समझते हैं या उसको मिला लेते हैं. कई लोगों को उसका ज्ञान नहीं है. जैसे अगर आप ज्योतिष को देखें तो वह भी, अगर ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे तो वह भी उस समय को देख के, उस लय ताल को देख के ही आपकी भविष्यवाणी करते हैं. रेखाएं देखते हैं, वह भी ऐसा ही करते हैं. अगर आप सारे इसको देखें ना, जितना भी हमारा पूरा इस पूरी नेचर की रचना है वो अपने आप में एक लय है, और जब उसे बांधा तो वो ताल है. जैसे अगर अपन लय, अगर हम मात्रा को गिनते जाए 1 2 3 4 5 6 जितना मर्जी गिनते जाओ आप, लेकिन उसको अगर हम फिक्स कर देते हैं
तो 1 से 16 तक फिक्स किया तो वो 3 ताल बन गई, लेकिन उसको अपन ने बांध लिया। तो उसको बांध के हम उसके साथ हमारा जीवन जैसे है ना, तो हमारा जीवन क्या, हमारा जीवन नृत्य है, हम नृत्य करते हैं और उस लय के साथ ही हम नृत्य करते हैं, उस लय के साथ ही चींटी चलती है, उस लय के साथ ही गजराज हाथी चलते हैं। उनकी मदमस्त चाल देखोगे तो आपको उनके शरीर में लय दिखेगी। सर्प देखोगे तो उसकी गति में लय, उसकी गति जो है वो लय है। जब वो चल रहा है तो एक गति है, जब वो गुस्से में है तो एक गति है। क्या है ये सारी लय है। और एक सबसे बड़ी लय है जो शायद जब हम उसे महसूस करते हैं, ये तो सारी दिखती है, पता लगता है, जो महसूस करते हैं वो लय है। जैसे आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का, पेड़ हिलता है, फूल खिलते हैं, ये लय है, ये अगर लय है। और जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा कि अभी बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, जो अभी पेड़ गिर गए वो इसलिए गिर गए कि वो लय नहीं थी, वो प्रलय थी। इट्स कॉल्ड प्रलय। जब समुद्र में तूफान उठ जाता है, नदियां अपने आपे से बाहर हो जाती हैं, तो उनकी लय जो है वो परेशान करने वाली लय जब आ जाती है, तो नेचर अपना रूप दिखाता है। और जब नेचर अपना रूप दिखाता है तो तूफान, भूकंप, ये बाढ़, ये सारी चीजें प्रलय दिखा देती है। इसीलिए कहते हैं फलानी जगह प्रलय आ गई। लय से जुड़ा हुआ शब्द है प्रलय, और उसको प्रलय हटा दो तो लय। और सबसे अच्छा ये लगा जलसा, जो सब्जेक्ट तुमने दिया मुझे, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट इसलिए है कि मैं जब कर रहा था तो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 85-86 के आसपास की बात है। मैंने पहली जिंदगी में जो कोरियोग्राफी, अभी मुझे काम करना शुरू करना था, अभी मैं एक स्टूडेंट जैसा ही हूँ अभी भी, तो जो पहली कोरियोग्राफी की थी उस कोरियोग्राफी का नाम था वृक्ष मित्र। आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वर्क विथ पेड़, और उसका नाम था वृक्ष मित्र। और उसमें मैंने संदेश दिया था, तब दिया था, ये 80s की बात कर रहा हूँ। आज लोगों को जो उनके उस वक्त थे उनको भी याद होगा। तो मैंने उसमें ये कहा था, मेरी सोच थी वो, पता नहीं क्यों मेरे को नेचर से मुझे भी बहुत प्रेम है। आई लव नेचर, बिकॉज मैं ये कहता हूँ आपकी विद्या, आपकी कला तभी आपका सार्थक है, आपके साथ है, जब आप नेचर और नेचुरल दोनों को एक साथ रखते हो। आप जैसे ही थोड़े नेचुरल से अलग हटते हो तो आप क्या हो जाता है, आप एक्टिंग करते हैं, फिर भाव से अलग हो गया, आपका भाव समाप्त हो गया, वो वहां आप ओवर एक्ट हो गए, क्योंकि आप नेचुरल नहीं है। कोई चाहे वो आप मंच की एक्टिंग देख लीजिए, या मंच के ऊपर जो अभिनय देख लीजिए, या आप किसी सिनेमा में देख लीजिए, सब जगह इसका फर्क पड़ेगा। तो मेरा संदेश ये था कि ये जो पेड़ों को काट काट के, ये जो सृष्टि को आप इससे हटा रहे हैं, ये आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस, उसमें एक मैसेज था। That's why I like this subject. तब आप उस साल में, तब इतने सालों पहले आप बता चुके हैं ये। और मेरी शुरुआत, मैंने कहा ना, मैंने स्टार्ट किया उससे। मुझे भी ठीक से समझ नहीं आता था कि मैं किस विषय पे कुछ काम करूं। जैसे पौराणिक कथाओं पे तो हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ हटके, कुछ नेचर को परखते हुए जब दिमाग में आया तो मेरा सब्जेक्ट था। और मैं उसकी लाइन है, वृक्ष लगाओ, धरती का श्रृंगार बढ़ाओ। ये तुम्हारे जीवन की, क्योंकि असली स्वास्थ्य तो इसी से लोगे। ऑक्सीजन आने का टाइम आ गया है, उस वक्त तो इसकी शुरुआत थी, आज ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए। अगर इतने पेड़ होते तो आपको ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं खरीदने पड़ते, बिकॉज ईश्वर ने आपको दिया। सो आप लोगों का जो ये दोनों का, देवाशीष और जलसा, आप लोगों ने जो ये पेड़ का एक कॉन्सेप्ट लिया, ये मुझे बेहद प्रिय था और ये मेरे से कनेक्टेड विषय है। अच्छा, हाँ भाई। और गुरुजी, तो जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, तो ये नेचर के साथ तो एक बहुत हमारा भी कला का भी एक बहुत बहुत गहरा संबंध है।
तो आप कैसे आपके मतलब नृत्य द्वारा ये संबंध को कैसे, और मतलब जैसे आप ये इतने 1986 को जैसे ये प्रोडक्शन किए थे, तो आप कैसे, आपको मतलब हमारे तो माइथोलॉजी का बहुत सारा हम लोग करते ही है, इंडियन माइथोलॉजी से एपिक्स से तो हम बिल्कुल। स्टोरीज तो करते ही है। तो आपको आप कैसे सलाह देंगे कि यंग कलाकारों को कि कैसे नेचर को भी हम इस मतलब हमारे प्रोडक्शंस में ला सकते हैं, कि कैसे इस टॉपिक को भी, क्योंकि ना अभी तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये अब सोसाइटी को और यंग कलाकारों को इसके बारे में भी हम लोग को अभी तो एक कर्तव्य है कि सोसाइटी को समझाने के लिए कि आज पेड़ का क्या इम्पोर्टेंस है। अभी तो हम थोड़ा कोई कोई समझ भी रहा है, तो नहीं हमारे रहा, ठीक बात है। हाँ तो तो माँ बताओ तुम्हारा। हाँ तो वही मेरा ये कहना था जलसा हाँ। कि हाँ, तो पेड़ को, नेचर को आप सोचें तो कभी कभी आप ये देखें, हमारी यंग जनरेशन को ये बताना है कि एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें लोगों ने पेड़ को काटने नहीं दे रहे थे, उसको पकड़ के लोग खड़े हो जाते थे कि हमें काटो, इसको बाद में काटना। याद है ना देवाशीष आप लोगों को? और नहीं हो तो इसको स्टडी करना। तो ये लोगों को बताना है कि हमारा जो ये नेचर है ना, हमारा क्या पूरे संसार में जो नेचर दिया है, मैंने उसमें क्वेश्चन उठाया था, मैंने कहा इतनी तरक्की किस काम की है जिसमें हमारा सांस लेना बंद हो जाएगा, और वो हुआ। हाँ। आज वापिस पेड़ पौधे लगाने के लिए सबको जागृत होना पड़ रहा है, तो ये नौबत आई क्यों? और अगर ये आप लोगों को, आज के बच्चों को हम स्कूलों में आजकल बताया जाता है ना, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, बच्चों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि उनको सिखाया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे 6-6, 7-7, 8-8 साल के जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनसे ही शुरुआत कर दी गई है। तो ये हमारे जो यंग बड़े हैं, जो युवा हैं, इन लोगों को ये पूछो कि अगर इन्होंने पेड़ नहीं लगाए या पौधे और या ये सब नहीं खिलाए तो फूल नहीं उगेंगे, फूल नहीं होंगे तो गजरा कहाँ से लगाएंगे, फूल नहीं होंगे तो खुशबू कहाँ से पैदा करेंगे, फूल नहीं होंगे तो किसी को खुश कहाँ करेंगे, फूल नहीं होंगे तो भगवान को क्या चढ़ाएंगे? व्हाट? कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक के फूल भगवान को नहीं चढ़ा सकते आप, प्लास्टिक की माला भगवान को नहीं चढ़ा सकते। तो वैसे ही आप जब नृत्य करते हैं तो आप प्लास्टिक के थोड़ी हैं, आप ह्यूमन है। तो वो भी एक तरीके से सोचा जाए तो वह भी एक पूरा तरीके से हमारे को दिया हुआ है ईश्वर का। वो फूल में ईश्वर बसते हैं, फूलों से ईश्वर खुश होते हैं। क्यों चढ़ाते हैं हम फूल? क्यों जगन्नाथ जी को सीधा पहला जो हम पुष्पांजलि करते हैं, दैट नेम इज कॉल्ड पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, हाँ। तो पुष्प है, उसको अंजलि कर, यू नो। सो सबको ये समझना होगा कि आपके दिल और दिमाग से अगर ये सब पेड़ पौधे सब रहे तो आपके दिल और दिमाग में फैक्ट्रियां होंगी और आपके दिल दिमाग में नेचर नहीं होगा, आपको कहीं दिखेगा भी नहीं कुछ। ऑलरेडी फ्लैट्स ही फ्लैट दिखते हैं, मकान भी फ्लैट ही दिखते हैं। उन मकानों में गमले कहीं दिख जाए तो दिख जाए। वेयर इज द बाग? बच्चे को आप, जो बच्चा बहुत रो रहा है और बहुत परेशान है, उसको आप घुमाने के लिए किसी बाग में ले जाइए, कितना खुश होगा आप देखिए उसको। बुजुर्ग आदमी को बीमार बहुत दिन से, तो उसे सीधा घुमाने बाग में ले जाइए, पार्क में घुमाइए। ये पार्क बन गए, पार्क सीमित हो गए। नेचर तो जंगल जैसा क्यों नहीं रहा? वो पेड़ इतने सारे जो, और अगर आप पुरानी जगहों पे जाएंगे, इधर बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे तो आपको हजारों साल पुराने इतने पेड़ मिलेंगे। आपको लगेगा कि आप इसमें जीवन बसर कर सकते हैं, सो सकते हैं, और इसके नीचे आपको लगेगा कि इससे अच्छी सृष्टि पे रहने वाली कोई जगह नहीं है। क्या एयर कंडीशन करेगा? एयर कंडीशन में सोओगे तो इधर तो अच्छी नींद लोगे, दूसरे दिन सुबह जाके अच्छी दवाई भी लोगे किसी अच्छे डॉक्टर से, लेकिन पेड़ के पास जाके दवाई नहीं लेनी पड़ती। हाँ हाँ अच्छा गुरुजी, तो वो दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कि आजकल के यंग कलाकारों को
आप क्या सलाह देंगे कि जिससे कि वो अपनी कला का उपयोग कर प्रकृति से और जुड़ सके, कला के द्वारा कैसे प्रकृति से जुड़ सके? वो सबसे पहले हमारे जो कलाकार हैं, वो जैसे हमारी नदियां हैं, नदियों के लिए अपना विचार सकता है। इतने श्लोक्स हैं नदियों के ऊपर, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों, ये तो खैर बड़ी नदियां, और भी फिर क्षेत्रीय नदियां आ जाती है। उन सबको लेके उनके रख रखाव के लिए, उनकी शुद्धता के लिए अपने नृत्य में उसका एक इस्तेमाल करें। नदी किनारे बैठे हैं, कितने वहाँ, जैसे वृंदावन कुंजन रचो रास आली। अब कुंजन क्या होता है? जहाँ ये सब है। तो ये सारी जब आपके पास पोइट्री भी है, जयदेव जी की भी पोइट्री है, जिसमें उन्होंने तो पूरे नेचर के लिए और कृष्ण को लेके और राधा जी को लेके इतना सारा कुछ दिया हुआ है। आप चाहे उसे ओडिसी में करें, चाहे आप कथक में करें, भरतनाट्यम में करें, और आपके पास साहित्य तो बहुत मिल जाएगा। वो साहित्य मिल जाएगा जो नेचर को आपसे मिलाएगा, वो नेचर से आपको कनेक्ट करेगा। और आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जो ऑडियंस होती है ना, वो जैसे माइथोलॉजी से जितना कनेक्ट होती है, उससे ज्यादा कनेक्ट हो जाएगी नेचर से। क्योंकि विदेशी लोगों को तो हमारी माइथोलॉजी पता नहीं है, लेकिन विदेशी लोगों को पानी का पता है, विदेशियों को सूर्य का पता है, उनको चंद्रमा का पता है, तारों का पता है, रोमांस का पता है, रोमांटिक पल का पता है ना। उसमें कैसे वो रात की रानी खिलती है, कैसे रजनीगंधा फूल होता है, उसकी खुशबू होती है, तो कैसे महकती है। आप नेचर से क्या क्या दिखा सकते हैं। तो और बिना शब्दों के भी दिखा सकते हैं, बिना शब्दों के भी। वो स्वान लेक क्या है कि जो रशियन क्या है, नेचर है पूरा। अच्छा गुरुजी, मैं एक ये क्वेश्चन इसका था, जो आप तो गुरुजी तो जो कलाकार है तो वो तो कला के माध्यम से दिखाएंगे जो नेचर का बैलेंस जो चाहिए, जो वो कला का माध्यम से दिखाएंगे। मगर जो सिविलियन है उसके लिए, जैसे मैं जैसे एक आम आदमी हूँ, आप एक महान हस्ती है, तो आपका जो मैसेज है आम सिविलियन के लिए वो मुझे थोड़ा चाहिए। जैसे मतलब सब कोई समझे, आम आदमी भी समझे कि हाँ गुरुजी ने ये बोला, ये उपदेश दिया, कि आम आदमी भी समझे। गुरुजी जो हमारे जैसे गुरुजी समझाए, तो गुरुजी ने बहुत अच्छा एक काम ये किया कि जब वो गुरुजी राजस्थान में रहते, तो राजस्थान की पृष्ठभूमि को लेके एक बहुत पहले, मैं छोटा सा था, मैं तब थोड़ा थोड़ा डांस अभी कर रहा था, लेकिन मुझे याद है एक कोरियोग्राफी बहुत बड़ी रचना की थी उन्होंने, जिसके शोज काफ़ी चले, और वो पीछे उस पूरे शो को आनंद शंकर जी लोगों ने भी ले लिया था। उन लोगों ने भी उस शो को आगे बढ़ाया। उस शो का नाम था धरती धोरारी। धरती यानी सृष्टि का, और धोरा हमारे यहाँ जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं उनको धोरा कहते हैं। तो अब आप सोचो कि उस मिट्टी की खुशबू को लिया, उसको नेचर को जोड़ा, उस मिट्टी से लेके उन्होंने राजस्थान के अंग, हमारे जो ये बाजूबंद की गतें होती है, ये जब सब बनाई गुरुजी ने, ये राजस्थान का फोक जो माड़ गायकी है उसको भी उसमें क्लासिकल वे में डाला। भाई क्लासिकल क्या है, वो किसी चीज से तो छन के आया है, क्योंकि उसका ओरिजिनल फॉर्म तो एक, जैसे कहते हैं ना कि गार्डन तब बना, पहले तो जंगल ही होता है, उसमें से कुछ गार्डन में ले आए आप। तो गुरुजी ने नेचर को हमें जन्म लेते ही, जब हमारी आंख खुली थी, जब वो सिखा रहे थे, तभी उन्होंने नेचर का एक संदेश देना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त वो इतना हिट शो था, वो गाला शो था, और अभी भी उसके पता नहीं कितने सारे शोज हो चुके हैं, देश विदेश में बहुत शोज हुए। और मेरे को याद है कि उसमें एक छोटा सा पीस आता था कि राजस्थान के जयपुर का नाम आता, तो जयपुर घराने का नाम आता था। तो उसमें मैं छोटा सा था, 8-9 साल का था, तो मुझे उसमें
10 मिनट का डांस करवाते थे गुरुजी के, कथक और जयपुर शैली। और मुझे बचपन से शौक था कि मैं प्लेन में कब बैठूंगा, मुझे हवाई जहाज में बैठने का बड़ा चाव था। और उस चाव को पूरा करने के लिए भी पहली बार उसी में नाचने में दिल्ली से जयपुर फ्लाइट से लेके गए गुरुजी। हाँ बोले थे। हाँ हम बताए ये थे। गुरुजी का संदेश और ये गुरुजी की शिक्षा में नेचर ऐसे आया। मैंने कहा ना, नेचर सबसे बड़ा गुरु है, सब नेचर को गुरु मानते हैं। हाँ तो वही क्योंकि आप किसी पक्षी को प्यास लगी है, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, वो अपने आप उसको पता है कि पानी कहाँ पीने के लिए जाना है। हाथी का झुंड चलता है, जब उसको प्यास लगती है तो वो अपने आप पानी जहाँ होगा उनको पता, दे नो द सेंस, उनके पास वो सेंस है जिससे वो नेचर गुरु है उनका। हम तो नहीं जानते कि उसको पानी देना है, हम नहीं जानते कि उसको भी दाना देना है, हम घर में गाय को पालते हैं तो उसको पानी दे देते हैं, खाना दे देते हैं। जंगल वाली को कौन देने जा रहा है? हु इज अरेंजर? सो नेचर है, वो अपने आप उसकी पूर्ति करता है। अच्छा। हाँ तो दूसरा जो नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन है कि महादेव शिव जी ही सृष्टि करता है और विनाशक भी है। हम अपनी कला के द्वारा दोनों रूपों का ही प्रदर्शन करते हैं। आज हमारा समाज विनाश से व्याप्त है। क्या ये केवल विनाश है अथवा सृष्टि का ही और एक रूप है? और इस सृष्टि और विनाश को आप अगर थोड़ा समझा सके। सही बात। जैसे महादेव शिव को कहते हैं ना, शिव सृष्टि के रचयिता है। शिव ने ही जैसे कहते हैं कि एक रचना करते हैं और वो संहारक भी कहते हैं, मतलब। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा सा चीक करूंगा जलसा। उनको नाश करते हैं, शिव निर्माण करते हैं। एक सर्कल है, जीवन एक सर्कल है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नमामि शमिशान निर्वाण रूपम। निर्माण करते हैं क्योंकि जो आया है वो अपना सर्कल लाइफ पूरी करके जाता है। वो सर्कल है, एक सिस्टम है। 24 घंटे का दिन जैसे सृष्टि एक है, अब उसको मेंटेन कर रहे हैं शिव। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि शिव संहारक है। वो संहारक नहीं, वो सिस्टम को चला रहे हैं, वो सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने तो रचा, ठीक है ना, और विष्णु से संचालित कर रहे हैं। शिव उसका पुनः निर्माण करते हैं, फिर वापस उसको सर्कल में ले आते हैं। तो इसलिए शिव को कहते हैं, शिव ही नेचर है, शिव ही क्योंकि शिव ने ही एक ऐसे भगवान है, महादेव है, देवों के देव महादेव बोलते हैं, जिन्होंने कोई मुकुट नहीं पहना, कोई सोना नहीं पहना, कोई चांदी नहीं पहनी। उन्होंने नेचर को ही पहन रखा। जटा कोई उन्होंने सुंदर हेयर कटिंग नहीं की। उसके ऊपर चंद्रमा जो सबसे कीमती है, सबसे सुशोभित है, प्यारा है, ठंड देता है। सर्प, ठीक है, और पूरे शरीर पे भभूत लगाते हैं। तो वो मिट्टी को भी, और मेरे ख्याल से शिव को मेरे ख्याल से कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसमें अबागंबर दिगंबर दोनों रूप भी उनको कहते हैं। जब वो बाघ का पहनते हैं तो इसलिए उसको कहते हैं बागंबर, और जब वो कुछ नहीं पहनते तो दिशाओं को पहनते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दिगंबर। सो शिव को तो सबसे सुंदर माना गया है। ईश्वरी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो वो नेचर और नेचुरल है वहां, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि नेचुरल है वो। सो अब जैसे आज के कॉल तुम कह रहे हो ना कि अब जैसे विनाश जितना क्यों हो रहा है, ये तो विनाश इसलिए हो रहा है कि जब वही कहते हैं धर्म की हानि होती है, तब ये विनाश तो आते हैं। तो वैसे ही जब हम सृष्टि को नुकसान पहुंचाएंगे तो सृष्टि हमें क्या देगी? फिर हम उससे क्या उम्मीद करें? हम जिस पेड़ के नीचे सोया करते थे, जिसकी छाया मिलती थी, जिसका फल भी खा रहे थे, उसको ही हमने काट दिया। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या मिलना चाहिए? इसका रिजल्ट क्या है? ना तो हमें फल मिलेगा, ना हवा मिलेगी, ना छाया मिलेगी। तो हमने उसको समझना चाहिए कि हम किस चीज का नुकसान कर रहे हैं, हम किस चीज को
जो जो बिना वजह के कुदरत ने हमें हमारे जीवन के लिए दिया, उसी को अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे ना, तो वैसे ही हम अपने कल्चर को संभालेंगे तो हम नेचर को भी संभालेंगे। दोनों चीजों का सत्यानाश करेंगे नहीं तो। हाँ, भाई सभी मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है। हमको समझना चाहिए कि हमको हमें दिया है ना, हमें मिला, हमने उसकी कदर नहीं की। अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो हमारे साथ तो नहीं दे सकेगा वो, नहीं कैसे देगा? हाँ, सबसे इंटेलिजेंट बनाया, मगर हम लोग उसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं किए। और हम लोग उसको कीमत उसको समझ नहीं पाए कि जो हमें इतनी अच्छी चीज मिली है, जो हमारा इतना अच्छा वातावरण हमें मिला है, इतनी शुद्ध पवित्र धरती हमें ईश्वर ने दी, उस धरती पे हमने तरक्की कौन सी की? तरक्की के नाम पे हमने जो दोहन किया, जो चीज को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो तो हमने किया, भगवान ने नहीं किया। तो अब उसमें जब हमने उसको किया तो भगवान ने भी कह दिया कि ले, तो इससे ऊपर से ये भी ले लो। हाँ, अभी तो डाल भी दिया। हाँ, वो इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, तो और नेक्स्ट जो है कि इस पैंडेमिक में एक कलाकार होने के नाते हमारे सामाजिक कर्तव्य क्या है और हम उन्हें कैसे निभा सकते हैं? हाँ, इस समय में हमारा सामाजिक कर्तव्य सबसे पहले तो ये है कि जो एक तकलीफ में जिस शख्स को हम देखें, उस शख्स की हम क्या मदद कर सकते हैं, हम उसको कैसे उसको आश्रय दे सकते हैं, या हाउ विल सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट करना में है। और अभी इस समय में करना चाहिए, नुकसान तो बहुत हो रहा है, हुआ भी, लेकिन अगर मैं अदरवाइज देखूं तो फायदा भी बहुत हुआ। हमारी हवा साफ होनी शुरू हो गई, हमारा नदी का पानी जो था वो वापस पीने काबिल हो गया। जिस नदी को देख के उसके पास में भी नहीं जाते थे, वो उसका पानी उठा के पीने के लगे, क्योंकि उसमें वो जो कचरा जा रहा था और जो उसको दूषित कर रहा था वो गया नहीं, क्योंकि बंद पड़ा है, वो गया नहीं, तो अपने आप में शुद्ध हो गया। क्योंकि वो तो पानी जब चलता जाता है ना, जब नदी चलती जाएगी तब तक वो नदी है, जहां नदी ठहर जाएगी वहां वो नाला है, और नाले का पानी कोई नहीं पीता। नदी का पानी सब पीते हैं, नाले का तो कोई नहीं पिएगा। तो वो नाला क्यों बना? क्योंकि वो ठहर गया वहां पे, उसमें इतना कचरा डाल दिया, इतना उसको गंदा कर दिया। तो एज ह्यूमन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। और कलाकारों के लिए ये है कि उनका रोटी रोजगार काफी लोगों का छूटा, तो उनके लिए उनको ये चाहिए कि वो अपने अंदर की ऊर्जा को और अपने आप को खड़ा करें। कैसे खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे वो जहाँ जो काम करते थे वो काम तो अभी है नहीं। इधर मंदिर में जाएं तो कोई अनुष्ठान नहीं है, ठीक है। अगर आप मंच के तरफ सोचें तो कोई दरवाजे खुलने के चांस नहीं है अभी फिलहाल। अभी पिछले 3-4 महीने रहा भी, आगे भी रहेगा, ये थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन मजबूत रहें कि वापिस सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस मजबूती के साथ आप कुछ सीख जरूर लें। यू हैव टू लर्न, आपको सीख लेना चाहिए। वापिस वो गलतियां मत करना जो अभी तक पिछले कुछ सदियों से होती आई हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक अलार्म था। जो भी हुआ, जो अभी चल रहा है, ये अलार्म है। नहीं तो सृष्टि पे से मेरे ख्याल से जैसे डायनासोर चले गए, गायब हो गए, वैसे कभी कुछ समय बाद सोचा जाएगा कि कोई मानव भी रहते थे, कोई इंसान भी। जैसे हिम मानव को हम बात करते हैं, हिम मानव कौन? जो हिमालय उधर रहते थे। अब हम तो कैसे ये सब कहानियां जो थी वो कहानी बन जाएगी अगर सच उसको संभाल के नहीं रखा और हम लोग संभले नहीं तो संभलना होगा। हाँ, अच्छा। और एक प्रश्न था कि वर्तमान में तो जो परिस्थिति है,
हम कलाकार उससे कैसे उभर सकते हैं, मतलब कला के द्वारा कैसे आने वाले भविष्य के लिए क्या तैयारियां अभी कर सकते हैं? इस समय में हमारा क्या, मतलब आपका क्या संदेश होगा कि क्या करना चाहिए? मेरा एक तो एक संदेश होगा कि जो आप कलाकार लोग हैं और जो वो अपना कार्य कर रहे थे, वो कार्य आपको जारी रखना चाहिए हिम्मत के साथ। ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाएं। छोड़ के बैठ गए तब तो कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने वो टाइम, आपको शायद हो सकता है कुदरत ने आपको टाइम दिया कि आप अभी रियाज करो, आप अभी रचना करो, आप अभी कुछ सोचो, आप अभी अपने इन्वॉल्वमेंट को बर्बाद मत करो, अपने भविष्य के लिए उसको तैयार करो। क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ते ही नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ने के बाद नौकरी मिलती है। हाँ। और जब कभी नौकरी नहीं होती है तो दूसरी नौकरी पे जाना पड़ जाता है। वैसे ही आपको बहुत सारे रास्ते खोजने चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप खड़े होके नहीं नाच सकते, आप बैठ के सोच के तो नाच सकते हो, मन तो नचा सकते हो, अपने मन की कल्पनाओं को नचा सकते हो, अपने आहार और व्यवहार को आप गा सकते हो, आप कुछ सुन सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। बिकॉज कलाकारों के लिए कह रहा हूँ मैं, आम आदमियों को तो वो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास भी हैं, उनको भी खोजने पड़ रहे हैं। जैसा वो कर रहे थे, जैसे कोई स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं, अब स्कूल तो खुले ही नहीं, तो क्या वो साइंस खत्म हो गया? दे आर टीचिंग फ्रॉम द होम, वहां से भी कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भी साइंस में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो जो खोज है, क्योंकि साइंटिस्ट खोज करता है हमेशा, कलाकार भी खोज करता है, खोज बंद नहीं होनी चाहिए, उसको रेगुलर करना चाहिए। क्योंकि अब तो आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा करो। और आप निराशावादी मत बनो, आशावादी बनो। अच्छा समय तो आएगा। अभी पीछे तीन ग्रहण आए थे, खत्म हो गए, वो अभी तक थोड़ी चल रहे ग्रहण। मैं तो सोच रहा हूँ 85 में अगर आपका जो प्रोडक्शन बना था वो अगर सब तबीयत से फॉलो कर लेता तो अभी ये हालत नहीं होता। सही बात है, आपने सही कहा देवाशीष। लोग अगर उससे फॉलो करते तो हमारे तो कोशिश थी कि लोगों को ये संदेश भेज दें कि प्लीज आप जितना हो। मेरे को इतना तकलीफ होती है जलसा, जब मैं देखता था पहले, अरे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गाड़ी से तो देख रहा हूँ कि वो नदी के, ये क्या है कि नदी है, तो मैंने कहा इसमें तो एक बूंद पानी नहीं है, ये कैसी नदी है, कहाँ गया इसका पानी? और जब बाई रोड और कहीं जा रहा हूँ तो मैं ये सोचता था कि यार मकान फ्लैट आ रहे हैं, वो पेड़ और जंगल कब शुरू होंगे? जब हम स्टेशन से बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या कहीं और से बाहर जा रहे हैं, तो तरसते हैं हम कि वो वापिस जंगल कहाँ दिखेगा हमें आंखों को, क्योंकि वो फ्लैट घर ये कंस्ट्रक्शन ही देख रहे हैं। और वो कंस्ट्रक्शन का ये नतीजा है, अति कंस्ट्रक्शन हो गया। आबादी बढ़ी, ठीक बात, लेकिन जिस चीज की रक्षा करनी चाहिए तो वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये तो समझना चाहिए कि वो प्रकृति था तो हम हैं, पर सिर्फ मतलब प्रकृति नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा हम नहीं रहेंगे। तो क्योंकि चांद पे भी अभी मकान बनाने की कोशिश हो रही है, चांद पे रहना संभव नहीं है। हाँ रहना तो इसी, क्योंकि वहां प्रकृति नहीं है, यहाँ है प्रकृति। हाँ, वो भी चांद पे रह सकते हैं क्या आप ऐसे जैसे यहाँ रह रहे हैं? नहीं, अभी जैसे कोरोना के टाइम पे बिना मास्क के हम बाहर नहीं जा सकते, वैसे बिना ऑक्सीजन के हम चांद पे थोड़ी बैठेंगे जाके, चंद मिनट में आ जाएगा। मगर ऑल एनिमल उधर मार्क्स में घूम रहे हैं। हाँ उनको नहीं घूमना चाहिए, दे शुड टेक केयर, ध्यान रखना चाहिए उनको। वो सोचते, हम लोग सोचते हैं कि उनको क्या नहीं, कुछ नहीं होगा, मतलब भगवान उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो कुदरती है ना, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। और जब कभी कभी, हालांकि हमारा ही बिगाड़ा हुआ कुछ होता है जिसकी वजह से उन पे असर पड़ता है, अन्यथा तो वो
वो तो बिल्कुल नेचर है, नेचर अपनी तरीके से रहता है। वही पेड़ अपने तरीके से बढ़ा हुआ था, उसको काटा तो हमने काटा। मतलब वो तो एक अपने आप में पूरा शरीर है। हम लोग को अभी नॉलेज मिलना चाहिए। जो जनरेशन हो रहा है तो हो रहा है, मतलब उसके साथ हम लोग को रखना चाहिए। एक अगर बेबी हो तो 10 पेड़ लगाना चाहिए उसके फ्यूचर के लिए। लगाना चाहिए, क्योंकि एक बेबी आपको अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप आज जैसे जहां जाते हैं वहां 15 रुपए और 20 रुपए की एक बिस्लरी की एक, या नॉर्मल बिस्लरी भी कम, अभी नकली हो गए। हाँ। एक पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, वैसे आपको सांस लेने के लिए बोतलें खरीदनी पड़ेगी फॉर द ऑक्सीजन। ये भविष्यवाणी आने वाली है। बिकॉज ये क्यों नहीं, ये नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता, ये करना पड़ेगा। तो ये मैसेज आप दोनों के थ्रू शायद लोगों तक जाएगा कि उनको नेचर से क्यों प्यार करना चाहिए, क्योंकि नेचर को प्यार करेंगे तो वो लय जो है उस लय को आप बहुत एक कहना चाहिए कि बहुत सॉफ्टली, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है चीज। नेचर ने जो दिया वो जब तक आराम से चलती है तब तक कितनी, कहते हैं ना, लहराती हवा चल रही है। वो हवा जब चलती है तो नदी से भी पता लगता है कि उसके अंदर तरंगे चल रही है, तरंगे, वो तरंग उठती है। वो तरंग संगीत स्वर है, नाद है। तरंग स्वर है, वो हवा लय है। और वो जब वो दोनों मिलके टाइमिंग्स को बरकरार रखते हैं तो वो ताल है। जब एक समय पे पढ़ती रहती है वो गति निर्धारित हो जाती है तो वो ताल बन जाती है। तो लय, सुर, ताल, तीनों ऐसे आ गए, लय, स्वर और ताल। और लय सर्वे सर्वा है। सूरज का निकलना, सूरज का वापिस जाना लय है। चंद्रमा का आना, चंद्रमा का जाना लय है। तो इसका समुद्र में जो तूफान आता है तो भी लय है, और वो अगर वो ठहर जाता है तो भी लय है। नदी जब ऊपर से चलती है तो वो लय है, और नीचे आके धीरे धीरे चलती है तो वो भी लय है। चिड़िया उड़ती है लय है। आप किस चीज से लय कर सकते हैं? उससे बाहर नहीं जा सकते आप उस लय से। आप हमारी खुद की सांस को हम जब काउंट करके चलाते हैं तो वो लय नहीं लेते कि 30 सेकंड, 15 सेकंड, व्हाटएवर, वो सेकंड तो हम घड़ी बन गई इसलिए सेकंड कह रहे हैं। जब पहले के लोग तो कोई घड़ी नहीं पहनते थे, वो तो ऊपर देख के समय बता देते थे। मेरे दादाजी ऊपर देखते थे कि अभी 12:30 बज गए। मैंने कहा ये कैसे? कि बोले सूरज यहाँ है, और वहां की घड़ी में देखो तो 12:30 होते थे। सो बिकॉज ऑफ दे नो द नेचर, दे नो द लय, क्योंकि सूरज अभी यहाँ आ गया, ये यहाँ पे ये आ गया तो इसलिए इतना समय हो गया। सांझ का ये हो गया। हाँ, और आप तो गुरुजी मतलब वही कि आपका बचपन तो प्रकृति से बहुत, आपका बचपन में प्रकृति का बहुत जुड़ा था शायद, मतलब बहुत कुछ आप उधर। और अभी जो चेंज आया है अभी आपका इधर, तो मतलब ये आपको क्या लगता है कि ये डांस में, और जब कुछ प्रोडक्शन या जो सृष्टि करते हैं तो इसमें क्या कुछ इसका मतलब इसका कोई इन्फ्लुएंस आता है कि ये जो चेंज आया है, जो बचपन में ये प्रकृति और नेचर जैसा था और आज जो सिचुएशन है आज जैसा है, तो ये जो चेंज आपके सोच में क्या चेंज लाते हैं? ये चेंज ये लाते हैं जलसा के जो भी करते थे, मंदिरों का एक वातावरण होता था। तो अपने आप में अभी भी जब हम मंदिर, कहीं चिदम्बरम नाट्यांजलि फेस्टिवल होता है तो वहां जाके जब उस मंदिर में के खजुराहो आप देखो ना, ये क्योंकि इसको एज इट इज रखा गया आसपास का एरिया। कई ऐसे फेस्टिवल्स है, नाट्यांजलि, खजुराहो फेस्टिवल, और भी जहाँ त्रिवेंद्र में भी, या हमारे कहते हैं जयपुर में भी गोविंद देव जी का मंदिर है। तो उस मंदिर के वातावरण को, उस और स्टेज को
एज इट इज रखा गया, तो वो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, वाइब्रेशन जो आती है हाँ। वो कमाल की होती है। हालांकि मैं आज के दौर में, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता, तो आज मंच आ गए, लेकिन मंच पे भी मेरी तो कोशिश ये होती है कि जितना भी उसको नेचुरल रखा जाए। नेचुरली आपको माइक की रिक्वायरमेंट है, माइक लेने पड़ते हैं, है ना, आपको लाइट भी लेनी पड़ती है ताकि अच्छा, लेकिन वहां तक उसकी रिक्वायरमेंट है वो मंच की, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उसको ओवर उसमें वो वजन डाल दिया जाता है, खामोखा में वो प्लास्टिक के फूल लगा दिए जाते हैं और वो कपड़ों से उसको इधर उधर सजा देते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये चाइनीज डेकोरेशन हो गया, चाइनीज लाइट हो गई, जो बहुत चमकती है पर छूती नहीं है। होती नहीं है। एक वो है जो आपको छूता है, एक वो है जो आंख में भी कभी कभी लगता है कि अरे यार बंद करो यार, आंख खुल नहीं पा रही है इसकी वजह से, तो इतनी चमक किस काम की जिससे आप ही की आंख बंद हो रही है, ना हो जाए। ये चीज मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसा रहना चाहिए। मैं कोशिश भी करता हूँ, रखता हूँ, मैं कम से कम, इसलिए मेरे कोरियोग्राफी में मेरी कम से कम प्रॉप्स यूज करता हूँ, मैं यूज नहीं करता ज़्यादा, चाहे किसी सब्जेक्ट पे किया हो। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारा आर्ट उसमें रहे, ना कि ऊपर की चीजें रहे। हाँ। हम बादल दिखा रहे हैं, नेचुरल अंग से, भाव से दिखा सकते हैं, और साइड में पड़ी उसे आप गैस छोड़ रहे हैं बादल से, तो वो तो डांसर ही गायब हो गया और धुआं धुआं हो गया। किसने कहा था ये धुआं छोड़ने को? और ऊपर से हंसी आनी और शुरू हो जाती है लोगों को, क्योंकि वो नाक में से, क्योंकि वो तो गैस है। हाँ। वो नेचुरल बादल थोड़ी है। हाँ, सही है। तो मेरा ये मानना है कि उसको जितना हो सके उतना आप उसको रखिए, क्योंकि मंच की भी गरिमा मैं समझ सकता हूँ कि मंच पे आपकी कोई कोरियोग्राफी है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को आप अपने आर्ट से ऊपर क्यों रख रहे हो? अपना डांस ज्यादा करोगे या उनको ज्यादा रखोगे? हाँ। ठीक है ना, आप दिखा रहे हो एक फूल के कारण, अब एक फूल के दिखाने के लिए आपका है, उसमें लाइन आ रही है या आपकी एक कोशिश है, आपने पता लगा कि वो स्टेज पे इतने वो डेकोरेशन इतना कर दिया कि आप खुद ही नहीं दिख रहे, एक फूल तो क्या दिखेगा। हाँ, तो मतलब नेचुरल रहना चाहिए जितना हो सके, मतलब जितना हो सके उतना नेचुरल रहे। और उसकी अब आप सबसे पहला, जितने हमारे जो रसों की बात करें, तो पहला नाम ही श्रृंगार का आता है। से आप ले सकते हैं क्या, जहाँ जो वातावरण है वो श्रृंगार ले सकते हैं कि ये वातावरण अपने आप में श्रृंगार है। आप वेशभूषा से तैयार होके आए, वो श्रृंगार है। आपने एक अच्छी सी प्यारी सी क्या कहते हैं रचना ली, जो बहुत ही पसंदीदा रचना हो गई, वो श्रृंगार है। आपने जरा सा मुस्कुराया और एक अच्छी आंख से आपने एक खड़े होके अंदाज में खड़े हो गए, वो श्रृंगार है। तो श्रृंगार को कितना कर सकते हैं आप किसी को, मयूर को आप पंख उठा लिया और श्री कृष्ण के मुकुट में लगा दिया, श्रृंगार है। राधा जी ने अपने नृत्य करते हुए कृष्ण जी की तरफ देखा, कृष्ण जी ने उनको देखा, वहां श्रृंगार है। कितने प्रकार के श्रृंगार है। तो ये श्रृंगार को आप, और क्यों ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं कि आप नहीं हैं और श्रृंगार ही श्रृंगार है, तो दिखा कौन रहा है ये? दिखा कौन रहा है? क्योंकि आप जब दिखाते हैं तो जो दर्शक है वो उसको बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। मेरा मतलब ये है कि वो कनेक्ट जो हो जाते हैं दर्शक, ऑडियंस,
वो बहुत जल्दी इसीलिए हो जाती है कि वो आपके थ्रू उसको देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। हाँ आप किसी को देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और ये कि हमारे जो कथक में प्रेमलू बने, द्रग जांगे द्रग जांगे रे जंगे जंगे तक तीरे के जंगे न जंगे तक कुकु तीदा दिखती। अब ये कुकु को कोयल की तरफ से ले लिया, द्रग इसको कहते हैं, है ना, और मृग हिरण को कहते हैं। तो ये जितने प्रेमलू बने ये ज्यादातर पर मिलू कहा गया है। इनका मतलब है श्रृंगार पक्ष या प्रकृति को मिलाया गया। देखो कथक में पर्णों के साथ साथ पूरा एक स्थान प्रेमलू को दिया गया। ता अथरी कुकुता थरी कुकु झन झन थरी का जनक। कितने सारे बोलों की रचना गुरुओं ने की। वो उन्होंने ये रचना इसलिए की कि वो सारी नेचर को भी नृत्य में लाए। हाँ बोलों के नेचर को, शब्दों वाला नेचर तो अपने आप में वो होता ही है। हाँ जैसा मैंने कहा ना, वृंदावन कुंजन रचो रास आली, तो ये सब तो अपने आप में श्रृंगार है ही। श्री नंद नाचत सुदंग, ये सब तो वृंदावन तट अमित नटनत, ये सारे शब्द आ जाते हैं तो वो तो अपने आप में श्रृंगार बोल ही रहे हैं। लेकिन ये प्रेमलू श्रृंगार बोलता है। हाँ तो मूर्त और अमूर्त दोनों का समावेश हो गया। ये मूर्त भी है, अमूर्त भी है। और इनका जब मिलन हो जाता है तो ये ही आपकी कला का अमृत बनता है। हाँ लोगों को मिलता है इसका रस। तो ऐसे रस और भाव। हाँ भाव रस भाव ऐसे आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और बस ये एक अंत में क्वेश्चन कि हम प्रकृति को हमेशा से क्षति पहुंचाते आ रहे हैं और प्रकृति अपने आप का उपचार कर रही है, और अब हमारे भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी प्रकृति को आरोग्य करने की कोशिश करें। क्या हम ऐसे प्रयास हमारी संस्कृति के लिए भी कर सकते हैं? हमारी संस्कृति बहुत समय दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित होती आई है। क्या इससे हमारी संस्कृति की शुद्धता बरकरार रहेगी? अगर नहीं तो कैसे हम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं? क्या देखो, जब भी वाकई ये ठीक है कि क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज है कि वो जैसे कई बार आप देखते हैं कि जब प्रलय आती है या ये तूफान वगैरह आते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि वो काफ़ी चीज़ें जो सृष्टि में पेड़ पौधे गिर जाते हैं और सारी खेती भी होती है वो भी काफ़ी नुकसानदायक हो जाती है। लेकिन वाकई वो सही बात है कि फिर वापस वो अपने आप को ठीक कर लेती है, समय लेती है, ठीक कर लेती है, क्योंकि वो अपने घाव खुद भर लेती है। कई बार ऐसे होता है कि कई जैसे कुछ जो ये जंगल में जितने भी पशु पक्षी हैं उनको भी नुकसान कई तरीके के पहुंचते हैं, बट अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनको अपना तरीका पता है और नेचुरल हो जाता है वो। इसलिए शायद हम इंसानों के लिए भी नेचुरोपैथी एक सिस्टम बनाया गया था, नेचुरोपैथी, कि वो प्राकृतिक चीजों से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको नेचुरोपैथी कहते हैं। प्राकृतिक उसका इलाज हो जाता है। तो प्रकृति अपने आप ही इलाज कर लेती है। वैसे ही तुमने बहुत अच्छी बात की कि हमारी संस्कृति और हमारी जो विरासत है उसमें भी क्या ऐसे हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को नुकसान जो ज्यादा पहुंचता है वो ये पहुंचता है क्योंकि हमें पहले तो अपनी संस्कृति अपनी विरासत का बिल्कुल अच्छा से पता ही नहीं होता, तो हमारे ऊपर दूसरों का प्रभाव पड़ता ही है। और शायद इसी वजह से हमारी रचनाएं ऐसी, हमारी जो हिस्ट्री रही है वो ऐसी रही कि हमारे ऊपर कई लोगों ने आके और शासन करा था, रूल करके गए। नहीं तो क्या हम सक्षम नहीं थे क्या? जैसे आज हम सक्षम हैं तो उस वक्त तो हम और सक्षम थे, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते। हमें उसे
जानना चाहिए, ठीक है, और अच्छा लगता है तो ठीक है। उसके भारत हमारे देश की एक खासियत है कि हम सबको प्यार देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम ये नहीं करते कि हम उससे अपने वाला तो नहीं अपनाते, उनको अपना लेते हैं। ये नुकसानदायक जो होती है वो ये स्थिति है जो हमारे को, क्योंकि आज आप और मैं एक हमेशा ये कहता हूँ कि जो संस्कृति और जो संस्कृत बचती है वो तभी बचती है, परंपरा भी बचती है तभी बचती है, आप अगर दोनों मिलके अपनी भाषा नहीं बोलोगे आपस में, तो सबसे पहला आपका नुकसान वहां से शुरू होगा। आप अपनी मातृभाषा घर में बोलेंगे तभी आपका वर्चस्व कायम है, आप मजबूत हैं। आप अपने किचन में जो बनाते हैं, जो परंपरा से खाते आ रहे हैं, वो खाएंगे तो ही कायम है। आप रोज बर्गर और पिज्जा रोज नहीं खाएंगे, वो कभी टेस्ट है। इट्स नॉट योर रेगुलर फूड, नॉट योर कल्चर। एकदम गुरुजी। आप गन्ने का रस क्यों नहीं पीते, आप दूध क्यों नहीं पीते, आप ये जो फलों के रस क्यों नहीं पीते? आप सारे दिन पेप्सी पिएंगे, आपको फिर तो मेडिकल क्लेम लेना ही पड़ेगा। अगर सारा दिन आपने ये खाया, ये पिया, ये खाया, ये पिया, तो ऐसे ही कल्चर का डिस्ट्रॉय होना या कल्चर का नुकसान होना ये। लेकिन जो अपने घर के खाने की प्यार करता है, जो अपने भाषा, जो वो मातृभाषा है जो हमारे घर में चलती है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जिस घर में उसकी बोली खत्म हो गई, जिस घर में उसका खाना खत्म हो गया, उस घर में उसका कल्चर भी खत्म हो गया। तो उसको कायम रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। आप इंग्लिश जितने मर्जी बोलो, लेकिन की को चे कोता जाचे ये मत छोड़ो। तुम आज के की कोरे, आज के की खावे। तो मैं भी कहूंगा मैं भी अपनी भाषा में बोलूंगा भाई के बने के खाणो है। तो काय जाला शू थई गयो गुजरात। तो हर प्रांत में जैसे जैसे जिस के घर के पूर्वजों ने अपनी भाषा और अपने कल्चर को बना के और उसे मेंटेन किया, वैसे पूरे समाज को ये मेंटेन करना आना चाहिए, क्योंकि समाज ही है जो निर्माण करता है, कल्चर को बचा के रखता है। आप दोनों के प्रेरणा लेके शायद कितने लोग सोचेंगे कि हम लोगों को भी वाकई पेड़ लगाना चाहिए, सृष्टि को बचाना चाहिए। सृष्टि बचाने हमारे सबसे मेन चीज है। ये बीमारियां इसलिए आई कि हमने सृष्टि की इज्जत नहीं की, हमने नेचर का सम्मान नहीं किया, नेचर को प्यार ही नहीं किया, हमने इसके केवल इस्तेमाल किया, फिर उसका नुकसान किया। तो ये संदेश सबको जाए और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। और जो समाज के लिए आप काफी टाइम से जो कर रहे हो देवाशीष जलसा, वो करते रहो। और ये मनुष्य जाति को ये संदेश है। ऑल द बेस्ट। जय माँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए और आपकी थैंक यू सो मच। और बस कि यही शुभ आशीष और बस यही ऐसे आप जैसे ऐसे बड़े हस्ती जो हमारे साथ ये टाइम बिताए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ देवाशीष और दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा आज। ये मैंने कहा ना मेरे पसंद का था ये सब्जेक्ट, तो मुझे भी अच्छा लगा था। हाँ कुछ बस यही कि एक आर्टिस्ट होने के नाते भी हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ कर सके। और हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि जितना भी भारत की संस्कृति को और भारत के लोगों को जितना भी कोई अच्छा संदेश जो हमारी परंपराओं का दे सकते हैं, वो आर्टिस्ट ही देंगे। बाकी सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां होती है, वैसे अपनी भी ड्यूटियां होती है, हमें भी ये देना चाहिए। हाँ वही तो बस वही कि ये सीख मिले हम सबको, ये इससे सीख मिले और हम कुछ कर सके। और बस और ये हमारा संस्कृति और प्रकृति सब और कला सबको कायम रख सके और
आगे बढ़ सके, और इस समय को भी जल्दी से भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो हाँ, जाएगा। हाँ, वही कि हम सब मिलके ऐसे काम करेंगे तो इसको खत्म करने का ही हमारा बेड़ा है कि ये जल्दी से खत्म हो जाए, वैसे के वैसे वापस और दुनिया बस और जिंदगी वैसे के वैसे रन करे। वही एक आपका आशीर्वाद से सबको, मतलब जो न्यू जनरेशन माँ से प्रार्थना है और सबके लिए एक बहुत शुभकामनाएं। फ्यूचर आ रहे हैं, न्यू जनरेशन के लिए अच्छा वर्ल्ड बने, उसी का कोशिश आप लोग, मतलब आप जैसे बड़ी हस्ती अगर सबको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, आप लोगों को बातों से अगर इन्फ्लुएंस होगा तो हम लोगों का वो सौभाग्य होगा। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऑल द बेस्ट तुम दोनों थैंक यू को, गुरुजी, और सब प्रणाम। तुम्हारे शिष्य परिवार को भी आशीर्वाद। जय हाँ, माँ, जय माँ। गुरुदेव, प्रणाम। ठीक, चल, जय माँ, जय माँ, जय गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुख्यतो ठीक है, विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते